Welcome online data communication lecture series. In previous we have seen that important topic error correction and reduction. In this process we have seen the introductory part. Now we are moving towards the error reduction techniques. Actually there are the three types of error error reduction methods or technique, you can say. First is the parity bit, second is the checksum, and third one the cyclic redundancy check. So before we are moving towards the parity check, let us see now how we make the data words. In this block you have seen there is a k bytes of the frames, so k bytes of the k frames. So how many data words are can be made with this in this block? That is the 2 की power k. Total number of block is k, so total word is each of k bytes, so total word can be made by 2 की power k. And here you can see there is the n number of bits, so here the each having the n bits. So how many code word is made up by this n bits? That is the 2 की power n code words. So now using this we are moving towards our the topic error reduction methods. We already say कि once we have sent the data from source to destination, we add the some extra bit in the transmission data. That extra bit is nothing but it is the redundant bits. So the this bit is necessary to add in the block of the your data. So when we this redundant bits are using to deduct the error, that time it is known as the check bits. So there are the three types of the techniques, or you can say methods. You can easily find out where the error has been occur. So first method is the parity check. दूसरा है method is checksum. Sometime it is called the error reduction methods. And third one is which is the cyclic redundancy check. So it is the divided into the three types. Now moving, first we see how parity checking is utilized in your this error reduction methods. Here is a one example. Sender wants to send 101111. So he compute the parity bits. How he compute the parity bits? That means there is a some additional bits, that is the parity bits added to in each data words. So the if you see it is a necessary you even check it is the parity or not. We add the one extra bit here, that is the 1 bits. So check how many ones are occur in this data. So in 1 2 3 4 5, including this is the uh, including bits 1, it is transmitted here and again it is computed and compare with your data. If it is the even number of your, you say extra redundant bits, that is the even ones, so it should be coming here. If it is yes even, then there is no error is taking place in this data. If it is wrong, or you can say it is changes the bit either 1 or 0, then it reject your data. This fashion it is a simple algorithm which is we have to utilized. So see how we have used this uh, in a in a data word. uh, we are actually having the 8 block, or each block is assigned 1 bits. 1 2 3 4 5 6
7 and 8. Okay, the first bit of is known as SMB, most significant bits, and last one is the least significant bits. This is the last one. This is the least significant bit. So what we do now, we have put the parity bits at the MSB, most significant bits. So parity bits are uh, represented by the P, capital P, parity bits. It is represented by कैपिटल P. अब ये जो कैपिटल P है, हम इसको यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के कॉलम में भर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो बाकी रेस्ट ऑफ द जो बिट्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द जो बिट्स हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये जो बिट्स हैं इनकी जो पोजीशंस है हम भरना शुरू करेंगे इधर से इस एंड की तरफ। सो स्टार्टेड फ्रॉम दी हेयर वी राइट दिस सम डेटा which is represented by the d suffix में I एक इंटीजर है, I takes the values 0 to n. So when I put I is equal to 1, then it is the d1. When I is 0, then you can write d0 फर्स्ट डेटा। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे पहला जो डेटा है, पहली जो बिट है डेटा की d0 है, दूसरी d1 है, तीसरी d2 है, चौथी d3 है, राइट। फिर ये है d4, फिर है d5, फिर है d6, ठीक है। इतना कर लिया तो यहाँ से इस ब्लॉक से लेकर ये जो पहले वाला जो ब्लॉक है ये कहलाता है हमारा, ये है 7 डेटा बिट्स। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 7 डेटा बिट्स। इट इज द 7 डेटा बिट्स। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, इट इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा वर्ड विद द पैरेटरी बिट्स। तो टोटल अगर इसको कहें दिस इज द पैरेटरी बिट्स, तो ये टोटल जो है ये कहलाएगा फॉर्मेट ऑफ डेटा वर्ड। डेटा वर्ड, डेटा वर्ड किसका किसके साथ है, विद किसके साथ है, ये विद पैरेटरी बिट्स के साथ है। सो देयर इज ए additional bit, so we have chosen that the resultant word will have either
इवन पैरेटरी और ऑड पैरेटरी। तो ये एक्स्ट्रा जो बिट है, ये इसकी मदद से हम देखेंगे कि जो हमने बिट ट्रांसमिट की है वो ऑड पैरेटरी की बिट्स हमने ट्रांसमिट की थी, ठीक है, या हमने इवन पैरेटरी की बिट्स ट्रांसमिट की थी। सो दिस इज द information by which we have taken. Now see, कब हम कहेंगे कि हमारी जो पैरेटरी है इवन है, और कब हम कहेंगे जब हमारी पैरेटरी ऑड है। तो जब इवन पैरेटरी होगी तब जो हम वन अगर यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा बिट पे अगर हमने वन लगाया और टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारी इवन हुई, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वंस अगर उसमें हम काउंट करेंगे, अगर वो इवन है तो हम कहेंगे वो इवन बिट्स हैं। ओके, सो हियर इवन बिट्स, इवन पैरेटरी, तो इवन पैरेटरी का पता कैसे चलेगा कि जहाँ पे एडिशनल पी हमने लिखा है उस प्लेस पे हम वहाँ पे वन लिखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स में जो वंस हैं वो अगर इवन है तो हम कहेंगे इवन पैरेटरी है। और ऐसे ही हम ये काउंट करेंगे कि जहाँ पे क्या कहते हैं, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड्स जो हैं जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड जो है वन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ऑड है तो ऑड पैरेटरी बोलेंगे। तो ऑड पैरेटरी कब होगा, जब जो एडिशनल बिट हमने जो उसमें ऐड किया है उसको ऑड करने के लिए हम जो भी एडिशनल बिट्स ऐड करेंगे उससे वो ऑड हो जाए। ये कैसे होंगे इसको आप देख लो एग्जाम्पल से। ये देखो, सबसे पहले हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से एक लाइन और खींचेंगे, यहाँ पे पी लिखा हमने, ठीक है, और ये मेरा डेटा वर्ड है। ये पी जो है ये पैरेटरी एडिशनल बिट्स है, पी वर्ड्स डेटा वर्ड, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए मेरा डेटा 1 0 1 0 1 0 है, ठीक है, और पैरेटरी मैंने यहाँ पे 0 ली है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वंस काउंट करो। तो नंबर ऑफ वंस यहाँ काउंट करेंगे तो कितने आ रहे हैं, एक वन ये है, एक वन ये है, एक वन ये है, एक वन ये है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं यहाँ पे 4 आ रहे हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ you can say total number of ones कितने हैं in this in the data word is 4। कितने आ गए, it is the 4। that means it is the even, ये क्या है, it is the even पैरेटरी।
so you know this one is the तो ट्रांसमिटेड जो हमने आपको पिछले बार बताया था कि जो भी मैसेज हम लाते हैं वो डेटा कोड के फॉर्म में होता है। डेटा कोड से हम डेटा वर्ड्स बनाते हैं और जो ट्रांसमिटेड जो डेटा वर्ड्स है वही ट्रांसमिट किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन में। इससे हमको ये पता चल गया कि जहाँ जिस प्लेस पे हमने पी लिखा हुआ है वो पी यहाँ पे जीरो जो वैल्यू असाइन की है एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट के पोजीशन पे, तो वो जो बिट्स है वो इवन पैरेटरी है। Okay, now see the next example. Same theme is right here. क्योंकि मशीन 0 1 ही समझती है इसलिए पैरेटरी 1 और 0 ही होगी। यहाँ पे ये मत सोचिएगा 8 लिखेंगे 20 लिखेंगे 100 लिखेंगे ए बी, कुछ नहीं। मशीन सिर्फ 0 1 समझती है तो हम 0 1 से ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम सेम डेटा ले रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 0 1 0 1 0 1, इधर हमने 0 लिया था तो इस ये हमारा 0 था तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। ठीक है, नाउ काउंट, आप इसको काउंट करो कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वंस यहाँ कितने हैं। ये 1 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसको मिलाएंगे तो ये 5। टोटल नंबर ऑफ वंस इन दी in this equation, so in the data words is 5, that is the मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ odd, so it is the odd पैरेटरी। Now here is one more example. This is the place of data words and total number of ones in the सेम एग्जाम्पल लेंगे।
1 0 1 0 1 0 1। पहले यहाँ पे हम रखेंगे 1। तो यहाँ पे देखो कितने 1 है, 1 2 3 4। ओके, सो नो, एक मिनट। यहाँ पे अलग एग्जाम्पल लेते हैं। 1 0 1 0 0 1। अब मैंने यहाँ पे पैरेटरी बिट्स पे 1 लिखा, तो यहाँ पे कितने 1 हो गए, 1 एक 1 2 1 2 1 एंड this is 3 1 and this one is the 4 1। तो total number of 1 is 4, so it is the even। और पैरेटरी क्या होगी, पैरेटरी हो गई इवन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेंगे। डेटा वर्ड, in this place additional पैरेटरी बिट्स, और डेटा वर्ड is 100 1 0 0 1 और पैरेटरी मैंने यहाँ पे चूज की 0। तो टोटल नंबर ऑफ वंस आप यहाँ पे देखो 1 2 3। सो total number of 1 is in the data word is 3, ब्रैकेट में ये हो जाएगी ऑड, नंबर है जो ऑड है, और ये कहलाएगी ऑड। तो ये टोटल जो पैरेटरीज हैं अगर हम देखें, और इसको अगर हम रफली अगर आप इसको समझना चाहते हैं फेयरली, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जो इतना पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका इवन पैरेटरी का है,
ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये है तो आप देख सकते हैं कि अगर एरर आएगी और उसको हमको चेक करना होगा तो हमको ये जानना होगा कि इवन पैरेट्री कब है और ऑड पैरेट्री कब है। तो इसके लिए हमको इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। अब प्रोसेस कैसे होगा एरर डिडक्शन के लिए, तो एरर डिडक्शन के लिए प्रोसेस कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ now see the parity checking at the receiver can detect the presence of an error if the parity of received signal is different from the expected parity which is coming from the sender, then it is known that the parity of the transmitted signal is always going to be even, and if the received signal has an odd parity, then the receiver can conclude that the received signal is not correct, it is corrupted. So the process of error reduction is now we can now remove. What we do now, we have having transmitted code, or we having the received code, and with the if there is error then we take the decision. Now अब हम एक सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम जो एक्स्ट्रा जो रिडंडेंट बिट पी यहाँ रखते हैं, फिर हम रखेंगे इसके बाद डेटा वर्ड, फिर रखेंगे पैरेट्री, फिर रखेंगे रिसीवर डिसीजन। रिसीवर डिसीजन। So
मान लीजिए मेरे पास ये जीरो यहाँ पे पैरिटी बिट्स पे और डेटा वर्ड में 1 0 1 0 1। अच्छा, अब आप देखो कि हम पहले इवन पैरिटी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप काउंट कर लो कितने वन है। 1 2 3 4, एक वन, दो वन, तीन वन और चार वन। सो ये कौन सी पैरिट्री हो गई? इवन। और यही हमको ट्रांसमिट करनी है, तो जो हमारा वर्ड है सेंडिंग वर्ड वो करेक्ट है। जैसे घर पे कोई आपको बड़ा हो, आपको आदेश दे और आपको वही काम करना हो, तो आप अगर उस काम को कर देते हैं तो पता चला हाँ ठीक है। आपसे कोई कहे कि ये सामान जोड़ के ले आओ, आप उसको और तोड़ के ले आए, तो वो काम क्या डिसीजन लेगा कि ये गलत है। तो जो डिसीजन का पार्ट होगा, वो डिसीजन का पार्ट लेने के लिए पहले ये रिसीवर कहेगा कि हाँ आप ये इवन पैरेट्री भेज रहे हैं, ठीक है आप सेंड करो। तो ट्रांसमिट क्या करेगा? ये ट्रांसमिटेड कोड हो जाएगा। सो नाउ ही इज रेडी टू सेंड। दिस बिकम ए transmitted code। अब रिसीवर जो है इस कोड को रिसीव्ड करेगा और ये कोड जो है ट्रांसमिट होने के बाद, जब रिसीवर एंड पे ट्रांसमिशन होने के बाद जब ऐड होगा, तो जो उसने रिसीव्ड किया है वो कुछ इस तरीके से है रिसीव्ड कोड। और इसको हम कहेंगे रिसीवर रिसीवर कोड वर्ड।
No. See in this example, आप पहले चेक करो कि यहाँ पे कितनी इवन पैरेटरी वन है, 1 2 3। तो जो हमने रिसीव्ड किया है वो जो पैरेटरी है वो तो ऑड पैरेटरी है। इसका मतलब रिसीवर का डिसीजन लेगा इट इज़ दी now see the next example. uh, in this example how we first we detect the error and we move to how to correct the error. 1 1 0. नो सी यहाँ पे हम लेते हैं पहले ब्लॉक, फिर ये, फिर 0, फिर 0,
फिर 1, फिर 0, फिर 0, यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सिंगल एरर आई है और जो कि ऑड नंबर ऑफ एरर के ट्रांसमिशन से हुई है और जो पायरेटरी का कोड वर्ड है वो चेंज हुआ है, तो चेंज ऑफ द पायरेटरी इंडिकेट्स द presence of the error. So in the received word, but if the number of error introduced in the transmitted code two or even number, then the parity of the received code will not change, it will be still remain even. So कैसे हम इसमें डिटेक्ट करेंगे कि एरर आई हुई है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मैच करते हैं अपने उस डेटा से जो हमने सेंड किया है। तो जब हम इसको चेक करेंगे कि जो मेरी पैरेटरी बिट्स है वो किससे चेंज हुई है, तो यहाँ जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आनी चाहिए ये जो 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक एरर आई है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे भी एक एरर आई है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 आया है, तो ये भी एरर आई है। अब यहाँ पे इसका कोड भी वही है ऑड, ये डिडक्शन हो गया कि ऑड पैरेटरी है और ये भी पता चल गया इट इज़ ए इनकरेक्ट सो दिस इज द प्रोसेस। और एक से ज़्यादा होने पे हम इसको नहीं कर पाते, लिमिटेशन है इसमें कि ये मल्टीपल एरर 2, 3, 4 के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये मेथड ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया और इस मेथड के न चल पाने की वजह से इस मेथड के जगह पे हमने फिर चेकसम मेथड लाया। तो जब हम चेकसम मेथड लाए, इसके अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम प्रॉब्लम्स देखें इसके तो एक जितना भी हम इंटर करते हैं, मैंने कहा सबका आस्की वैल्यूज़ असाइन रहता है। तो जैसे जो भी कोड हम डालेंगे, एक वर्ड है इटसेल्फ हम ले लें डेटा, तो जो डेटा का जो वर्ड है इसका आस्की कोड में कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइंड होगी और कौन सी वैल्यूज़ किसकी है ये हम पहले से बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू नाउ, व्हाट वी डू नाउ, हम जो आस्की वर्ड डेटा है उसके लिए इस कोड को डिज़ाइन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये कैपिटल, एक मिनट, हम यहाँ पे सो इट इज़ द डाटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे लिख लो, डी ए टी ए, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, है ना, और
यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट जो हम MSB पे ऐड करते हैं वो लिखिए, और इधर हमारी अदर बिट्स आ जाएंगी। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 नंबर पोजीशन होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी। अब आप देखो कि जो डेटा की जो वैल्यूज़ हम लिखते हैं वो कैसे इवन और ऑड होती है, और हम कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा और ए की वैल्यूज़ की जो पोजीशन थी वो ऐसे लिखी, 1 0 0 0 1 0 0। इसके लिए हमने 1 माना, लिखा 1 0 0 0 0 0 1। अब आप टी के लिए जाएंगे तो टी के लिए हमने पी की वैल्यू 0 ली है, ये है 1 1 0 1, और फिर 0 1, फिर 0 0। और ए के लिए हम पैरेटरी बिट्स 1 रखेंगे, 1 0 0 0 0 0 और 1। तो हमने यहाँ पे पैरेटरी को चेक करना है कि हमारी पैरेटरी क्या है, इवन है कि ऑड है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे इस वाले रो में, डी वाले रो में हम देखेंगे ये इवन है, इस वाले रो में ये ऑड है, इस वाले रो में 1 2 3 ये इवन है, इस वाले रो में ये ऑड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम इवन पैरेटरी भेजते हैं तब तो हमको कोई भी एरर नहीं मिलती। जब जैसे ही हम ऑड पैरेटरी भेजते हैं तो हमारे पास एरर अकर हो जाती है। इसी में अगर कहीं जो ऑड पैरेटरी होंगी तो जो एरर आएगी वो इस ए पे और इस ए पे आएगी। इसी इसी एरर को हम डिडक्ट कर सकते हैं, पर ये सुटेबल ना होने के कारण हमको दूसरी टेक्निक चेकसम एरर रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो चेकसम एरर जो रिडक्शन टेक्निक है, ये टेक्निक इसमें हम क्या करेंगे, जो एरर्स होती हैं बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में होती हैं, क्योंकि पैरेटरी चेक मेथड डिडक्टिंग एरर को कुछ कंडीशंस जैसे ही बर्स्ट होती है सक्सेसफुली डिडक्ट नहीं कर पाती, तो हमको चेकसम करना पड़ता है। और एवरी ब्लॉक का जो डेटा बाइट्स है, इस मेथड में 8 बिट का हम एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं और उसमें ऐड करते हैं 8 बिट के ब्लॉक ऑफ द डेटा को। सो फिर हम फाइंड करते हैं कितने चेकसम
बाइट्स हो रही हैं, तो जो कैरीज ऑफ द एसएमबी है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे आता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और फिर चेकसम के डेटा को फाइंड करते हैं. तो जनरेशन ऑफ चेकसम विल बी क्लियर if we see this example.